Hello everyone. So once again, welcome you to the biology online classes. Now, in the previous class, we have studied about the development of the male as well as the female gametophyte in case of flowering plants. ठीक है? एंजियोस्पर्म में कैसे मेल गैमेट डेवलप होता है and कैसे फीमेल गैमेट डेवलप होता है, we have seen all this. Now, in case of angiosperm, we have seen that जो मेल गैमेट प्रोड्यूस हुआ, it was two, right? जब pollen grain develop होता है तो inside the pollen grain there are two type of cells we are seeing basically. One was vegetative cell and the other was generative cell. Now vegetative cell give rise to the tube cell या फिर tube nucleus and the generative cell undergoes again mitosis to give rise to two male gamete और ये mitotic division करता है. ठीक है, तो यहाँ पे दो मेल गैमेट हमने देखा. एज वेल एज जब हम एंजियोस्पर्म का जब हम गाइनोशियम दैट इज पिस्टिल पार्ट का अगर हम देखेंगे तो पिस्टिल में क्या होता है, इनसाइड द ओवरी वेयर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल. तो ओवरी के अंदर जब ओव्यूल प्रेजेंट है तो ओव्यूल के अंदर थ्रू द न्यूसेलस मेगास्पोर मदर सेल अराइजेस एंड फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोस first meiotic division and then it form four haploid meiospores and then after that the female gamete was produced. तो पहला जब female gamete जब produce होता है at that time 8 cells were formed जहां पे एक जो था was the functional egg or you can say the female gamete whereas the rest 7 are the synergids, the 3 antipodal cells and 2 polar nuclei were there. So this was the scenario of the formation of the male and female gamete. Now, as the gamete have developed, male gamete आ गया, female gamete develop हो गया, तो अब क्या होगा? Fertilization होगा. तो fertilization का मतलब हमें क्या पता है कि fertilization का मतलब होता है जब male as well as the female gamete fuses with each other. That is called sexual reproduction. Sexual reproduction में होता क्या है? Male and female gamete fuses with each other to form the zygote. But यहाँ पे in case of plants what is the phenomenon we are going to observe? Yes, obviously sexual reproduction होगा, male and female gamete का फ्यूजन होगा, लेकिन मेल गैमेट जो है वो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? इट इज फॉर्मिंग इन द एंथर. और फीमेल गैमेट जो है वो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? इट इज फॉर्मिंग इन द दैट गाइनोशियम. तो यहाँ पे जो मेल में जो एंथर है, एंथर प्रोड्यूस कर रहा है पोलन ग्रेन. तो इन पोलन ग्रेन्स को हमें स्टिग्मा तक लेके जाना होगा. दैट मीन्स पिस्टिल का जो 3 पार्ट्स था, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, द अपर पोर्शन इज नोन एज द स्टिग्मा. तो पोलन ग्रेन को हमें स्टिग्मा तक लेके जाना होगा. नाउ दिस ट्रांसफर of the pollen grain from the anther to the stigma of a plant is known as pollination. So today we are going to study about pollination. So what is the meaning of pollination? Pollination का मतलब क्या हुआ? जब transfer of pollen grain transfer होता है anther. pollen grain कहाँ पे produce होता है? Obviously in the anther, that means in the stamen or in the male part of the plant, from the anther to the stigma of a flower. जब वो एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है pollen grain. Now this phenomenon is known as pollination, right? Now pollination can be of 2 types. It is seen that pollination are of 2 types. First one is self pollination and the second one is cross pollination. Now first one is self pollination and second one is cross pollination. सेल्फ एंड क्रॉस, राइट? तो सेल्फ पोलिनेशन का मतलब क्या होता है? द पोलिनेशन विच इज टेकिंग प्लेस इन द सेम प्लांट. एक ही प्लांट के फ्लावर के बीच में हो रहा है, सेम प्लांट. तो पोलिनेशन जो कि सेम प्लांट के फ्लावर में हो रहा है, दिस इज नोन एज सेल्फ पोलिनेशन. वेयर एज जो कि डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर के बीच में हो रहा है, दिस इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन. डिफरेंस इज सेल्फ का मतलब जहां पे सेम प्लांट के फ्लावर के बीच हो रहा है, pollination. Now this self pollination can be differentiated into 2 types. First one is autogamy and the second one is jejunogamy. ठीक है, तो autogamy as well as jejunogamy. Now autogamy का मतलब क्या हुआ? The pollination which is taking place within the same plant flower. एक flower है, suppose same flower, if the bisexual flower is there, right? अगर एक plant में bisexual flower है, एक plant में
obviously there will be male and female part both. Suppose let us see here one flower is there and here you are going to have the female part and also the male part. तो इसके बीच में जो pollination जो pollen grain का transfer होगा, that means एक ही flower के बीच में जो pollen grain transfer होगा into the stigma, now this will be termed as autogamy. That means सेम फ्लावर में ही होगा, सेम फ्लावर में एंड्रोशियम और गैनोशियम जो प्रेजेंट है और इनके बीच में अगर ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का, नाउ दिस इज नोन एज ऑटोगैमी. वेयर एज जेटनोगैमी का मतलब है डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट. ठीक है. नाउ जेटनोगैमी का मतलब, नाउ ऑब्वियसली वन प्लांट इज देयर. नाउ एक प्लांट में suppose this is one flower, again another flower is there, male and female part. तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट, नॉट प्लांट, एक फ्लावर के दूसरे फ्लावर तक अगर जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, फ्रॉम हियर सपोज द पोलन ग्रेन is coming to the stigma of second flower. This is the first flower and this is the second flower, right? तो ये पहला फ्लावर से अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है सेकेंड फ्लावर में, या फिर सेकेंड फ्लावर का पोलन ग्रेन अगर ट्रांसफर हो रहा है फर्स्ट फ्लावर में, बट इट इज टेकिंग प्लेस विद इन द सेम प्लांट. एक ही प्लांट है, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर्स. नाउ दिस इज टर्म्ड एज जेटेनोगैमी, राइट? नाउ दिस विल बी टर्म्ड एज जेटेनोगैमी. So autogamy and jetenogamy, there are two types of self pollination. Autogamy का मतलब सेम फ्लावर में हो रहा है pollination और jetenogamy का मतलब डिफरेंट फ्लावर्स में हो रहा है, राइट? नाउ क्रॉस pollination is different obviously from the self. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो pollination होगा वो डिफरेंट फ्लावर्स डिफरेंट प्लांट के बीच में होगा. ऑब्वियसली यहाँ पे जो प्लांट होगा वो डिफरेंट होगा एक दूसरे से. सपोज ए प्लांट इज देयर एंड बी प्लांट इज देयर ऑफ द सेम स्पीशीज, तो ए प्लांट से बी प्लांट तक पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा. नाउ दिस इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन, राइट? तो यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स के बीच में होने वाला है ऑफ द सेम स्पीशीज, तो दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन. नाउ क्रॉस पॉलिनेशन can also be differentiated into many types and it's very important. It's often asked in your examination that cross pollination takes place by two ways. One is abiotic and second one is biotic. ठीक है, तो पहला वाला ये abiotic and biotic factors क्या है, तो these factors are actually agencies. देखो, अगर एक फ्लावर से एक प्लांट से दूसरे फ्लावर तक अगर पोलन ग्रेन को ट्रेवल करना है तो ऑब्वियसली इट शुड ट्रेवल थ्रू सम एजेंसीज. उसको थ्रू एजेंसीज कोई भी उसको फैक्टर चाहिए, कुछ उसको चाहिए जिसके थ्रू वो ट्रेवल कर पाए एक प्लांट से दूसरा प्लांट में. अगर यहाँ पे एक प्लांट और वहां पे एक प्लांट डिफरेंट 10 फीट डिस्टेंस में है तो भी तो उसको वो पोलन ग्रेन अपने आप तो उड़ के जा नहीं सकता, अपने आप तो जा नहीं सकता, उसको आइदर उड़ के जाना है या फिर पानी के साथ जाना है, आइदर इंसेक्ट्स हम जो देखते हैं इंसेक्ट्स लेके जाते हैं. तो ये सब क्या है, दे आर एक्चुअली द एजेंसीज विच आर हेल्पिंग इन द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन. तो यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन में हमें एजेंसीज का जरूरत होता है. नाउ द एजेंसीज आर डिवाइडेड इनटू टू फैक्टर्स और टू टाइप्स. वन इज एबायोटिक एंड द सेकेंड वन इज बायोटिक एजेंसीज. नाउ एबायोटिक एजेंसीज आर दोज विच आर नॉट लिविंग, राइट? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एयर एंड वाटर. सो फर्स्ट वन एबायोटिक एजेंसीज में क्या आएगा, एयर आएगा एंड वाटर आएगा. तो एयर के थ्रू जब पोलिनेशन होगा तो एयर पोलिनेशन और वाटर के थ्रू जब पोलिनेशन होगा तो वाटर पोलिनेशन, बट इट इज नॉट एक्चुअली दिस टर्म, इसके लिए टर्म अलग होता है. ठीक है, अगर एयर से पोलिनेशन हो रहा है तो इट विल बी टर्म्ड एज एनेमोफिली. दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है. एयर से अगर पोलिनेशन हो रहा है तो दैट मीन्स इट इज नोन एज एनेमोफिली. वाटर से अगर हो रहा है तो हाइड्रोफिली. ठीक है, तो अगर एबायोटिक एजेंसीज क्या क्या मिला हमें,
एयर मिला, वाटर मिला. एनेमोफिली, हाइड्रोफिली. एनेमोफिली का मतलब when the pollination is taking place with the help of air or the transfer of pollen grain is taking place with the help of air, that means it is anemophily. If it is taking place with the help of water, that means it is hydrophily. So these are the abiotic agencies. Biotic agencies, let's see here again. This is the biotic agencies, that means the living agencies. तो biotic agencies में हम क्या क्या देखते हैं? Biotic agencies में what we are going to see? We are going to see insects. Obviously, we honey bees वगैरह जो है they are known as insects, right? तो insects है, फिर birds है, right? उसके बाद animals है. तो ये 3 एजेंसीज बायोटिक होते हैं. तो जो कि इंसेक्ट्स के थ्रू जो पोलिनेशन करते हैं इन्हें हम कहते हैं एंटेमोफिली. ठीक है, इंसेक्ट्स के थ्रू अगर पोलिनेशन हो रहा है दिस इज नोन एज एंटेमोफिली. बर्ड्स के थ्रू अगर हो रहा है ऑर्निथोफिली. और अगर एनिमल्स के थ्रू हो रहा है इट इज नोन एज जूफिली. So there are various terminology which is termed or which is given about the agencies. Cross pollination में हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमें agencies का जरूरत होता है because the plant have to travel a certain distance. Pollen grain को एक distance travel करना होता है एक plant से दूसरे plant तक. तो वो जो distance है वो कैसे travel करता है? Either with the abiotic agencies or with the biotic agencies. तो abiotic agencies में क्या हो गया? Air हो गया and water हो गया. Biotic agencies में हो गया इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स. तो इंसेक्ट्स जो इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन करता है दे आर नोन एज एंटेमोफिली. जो बर्ड्स के थ्रू करता है दे आर नोन एज ऑर्निथोफिली. और एनिमल्स के थ्रू जो करता है दे आर नोन एज जूफिली. नाउ द क्वेश्चंस व्हिच आर ऑफन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन इज पॉलिनेशन डन बाय बैट. बैट जो पॉलिनेशन अगर करता है तो उसको क्या कहते हैं? पॉलिनेशन डन बाय स्नेल. ठीक है, बेट और स्नेल अगर पॉलिनेशन कर रहे हैं तो उन पॉलिनेशन का क्या नाम है? तो बेट अगर कर रहा है तो दे आर नाम और इनका जो नाम है इसको कहते हैं काइरेप्टेरोफिली. इट इज टर्म्ड एज काइरेप्टेरोफिली. CHIREPTEROPHILY काइरेप्टेरोफिली. एंड स्नेल जो करता है इसे हम कहते हैं मेलाकोफिली. राइट. सो बैट से अगर पॉलिनेशन दिस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस टू आर ऑफन आस्क्ड in your examination, even in the entrance examination these two are oftenly asked कि अगर बैट पॉलिनेशन करता है तो उस पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं? तो दिस इज टर्म्ड एज काइरेप्टेरोफिली. और अगर स्नेल पॉलिनेशन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज मेलाकोफिली. तो इन सब एजेंसीज के थ्रू आइदर एबायोटिक हो या फिर बायोटिक हो, इन सब एजेंसीज के थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है. ठीक है, तो दिस इज पॉलिनेशन. नाउ व्हेन द pollen grain is transferred through all this abiotic या फिर biotic agencies या फिर through self pollination या फिर through cross pollination, after it is transferred then we will proceed about the fertilization. कैसे प्लांट में फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे? क्योंकि देखो जब when we are talking about human beings तो यहाँ पे क्या होता है? डायरेक्टली the male and female gamete come into contact with each other, right? बट जब हम प्लांट के बारे में बात करें यहाँ पे डायरेक्टली हम मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को कांटेक्ट नहीं करा पाएंगे क्योंकि फीमेल गैमेट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक, एम्ब्रायो सेक के अंदर हो रहा है. तो ऑब्वियसली पोलन ग्रेन हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस. उसको स्टिग्मा के थ्रू स्टाइल एंड स्टाइल के थ्रू ओवरी एंड देन ओवरी के अंदर जाके ओव्यूल को फिर एम्ब्रायो सेक के अंदर जाके फिर एग को फर्टिलाइज करना है. तो इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी टू गो. तो दिस इज क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. सो दिस इज फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन जानने से पहले हमें पॉलिनेशन जानना जरूरी था. तो दिस वाज द पॉलिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन एक बार हम देख लेते हैं.
सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन. तो पोलिनेशन होता क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ प्लांट, of a flower. It can be of two types. It is self pollination and cross pollination. The self pollination का मतलब है अगर सेम प्लांट के बीच में अगर हो रहा है, दिस इज ट्रांसफर अगर हो रहा है pollen grain का, तो दैट इज सेल्फ pollination, which is again differentiated into two types, autogamy and jejunogamy. Now autogamy का मतलब if the pollination is taking place within the same plant, within the same flower, अगर सेम फ्लावर के बीच में अगर हो रहा है सेम ही प्लांट का, तो दिस इज ऑटोगैमी. और जेटनोगैमी हम किसे कहते हैं? अगर डिफरेंट फ्लावर के बीच में एक ही सिंगल प्लांट, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में अगर ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन का, तो दिस इज नोन एज जेटनोगैमी. नेक्स्ट इज क्रॉस दैट पोलिनेशन. क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है? डिफरेंट फ्लावर्स एंड डिफरेंट प्लांट के बीच हो रहा है. नाउ this is taking place with the help of some agencies because the plant have to travel a certain distance. Now abiotic and biotic agencies are there, so non-living and living agencies are there. Now non-living में air and water it's coming. So air के through जब pollen grain transfer होता है it is known as anemophily, और जब water के through transfer होता है it is known as hydrophily. जब wet के through that means अगर biotic जब हम देखेंगे at that time that means the living one, तो इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स हम कंसिडर कर सकते हैं. तो इंसेक्ट्स जब है हनी बीज वगैरह, तो इसे हम एंटेमोफिली कहते हैं. जब हम बर्ड्स का देखते हैं दैट टाइम इट इज नोन एज ऑर्निथोफिली. एनिमल्स का जब हम देखते हैं एट दैट टाइम इट इज नोन एज जूफिली. नाउ द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच इज ऑफन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन इज द पोलिनेशन डन बाय बैट इज कॉल्ड एज काइरेप्टेरोफिली एंड द पोलिनेशन ऑफन डन बाय स्नेल is known as melacophily. So this was today's class, and in the next class we will learn about the fertilization process. So thank you.